Bhaktivedanta Sai Maharaj. Avaicharan. Then Avaicharan, he took sannyas from Bhakti Pragyan Kesava Goswami. And Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, he also took Diksha from Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Yeah. So this is the parampara in Kama. And actual, when Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, he preached to Western country, that time they banned. And they hide everything. You see, they are. Before they also to so much relationship with Gurudev, Narayana Goswami Maharaj and ISKCON. Especially Tamal Krishna Maharaj or what is his name? Satsarup Maharaj or Giriraj Maharaj. And all they used to come in our Keshavji Gaudiya Math and learn everything from Narayana Goswami Maharaj. When all the ISKCON GVs are coming, that time they banned. Actually, this is the history. Then they also took out all the name of the things. That means they made some politics. These are. So I don't know what's the instruction. Go or to do not go. I don't know what to do. Because I learned in my city to don't ever mention. If they ask, I have Harinam and I have the Diksha, and I mention your name, but never mention that I'm out from this one. If they ask, I say. But if they don't ask, I will not say. And because of this, I was doing service in the kitchen, because otherwise maybe they wouldn't even allow me. But then, I don't know, because sometimes I have to be silent listening, or sometimes I have to try to convince them something that they are not willing to be convinced. And I don't even know so much Hindi to be able to put someone in Hindi. But I tried. The last time I tried it, I got very upset. Even the Prabhuji, he was like, oh, you have Diksha because they remember me, and because I enter in the kitchen. Then in this one, you have to enter in the kitchen only if you have second initiation. And they see my kandi and they was like, oh, but you have only one round mala. I say it broke. Actually, it broke. And then I repaired. And it was you gave me this good. And I repaired and I closed. I say, when my Gurudev will come, I will take three rounds. And he was like, no, because in the Shastra it's written that it has to be 3 if you are second initiation. So I was asking him, where is it written that second initiation means 3 rounds? Because yesterday you mentioned that actually any person has to wear 3 rounds. But in this one is like this, Bhakta is like this, living in temple 2, initiated 3. And then he was fighting with me that this is written in the scripture. That you live in the temple, you have to wear 2 rounds, and if you are initiated, it's 3. And then I was like, please show me where is it written. Because then he said, no, it's Shastra, but he couldn't mention the Ramana, of course. But then yesterday you mentioned, it was a doubt in my mind. No, everybody have to put the 3 rounds like this. This is the thing. Lalate kistel. No. Lalate tilakam naste. Kanthe nasti trikanthika. Edeva nasti govinda. So nara posuro udahanta. That means in this version, you are initiated, not initiated, that's not mentioned in there. Everybody have to put 3 rounds neck. Understand? Very that thing. मैंने भी लेकिन ये सुना है कौन ये सिस्टम
वो तो लोग मन माने बना दिया, रूल्स बना दिए कर Vrindavan also. है। They are saying if you are completely initiated and taken a Diksha, then you can play the 3 rounds, otherwise. Where is written that you are Diksha, not No, Diksha? no, This is written is there. But they speak to everybody. तो सबके माइंड में वो घुसा हुआ है. सबके माइंड will have to follow the rules, our Shastra rules. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he written one thing. You have to follow the rules of the government, not the rules of the any director or Yes. any. Yeah, he's written. Wow. I read it. Swami Maharaj purport. I written here. It's a Japanno Devadaya. Here they are. Similarly, the process of the regarding to service to different part of the body is to supply food for the stomach. The demigods are so the speak different officers and directors in the government of the Supreme Lord. One has to follow the laws made by the government, not by the officers or director. Similarly, everyone is to offer his worship to the Supreme Lord only. है? समझ में आ रहा है क्या बोला? गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाया है उसको फॉलो करो. कोई ऑफिसर डायरेक्टर्स कोई ऑफिसर डायरेक्टर मॉनिमेंट कर दिया, उसको फॉलो नहीं. ये साईं महाराज देंगे. This is the purport of Bhaktivedanta Swami Maharaj. He gave this example. And the demigods are so speak at here the very government, the Supreme Lord, one has to follow the laws made by the government, not by the officers or directors. तो शास्त्र के गवर्नमेंट, शास्त्र क्या है? Shastra, our law book. What Shastra is saying or there? What they are saying, that is not our subject. Understand? This. There are many rules they are doing. Okay. They are saying, oh, first, and when you stay in the temple, and after 10 years I will give and Harinam, then maybe after 10 years I will give Diksha. This is not the rules. Sai Maharaj gave Diksha to Samrani Didi and Adriya. After 10 years, you ask to Samrani. You ask to, what is his name? And Tamal Krishna Maharaj. You ask to Giriraj Maharaj. When they receive Diksha mantra from their Guru. You understand or not? So why these? They temple rule. There is a temple rule. This is not our subject. In the Srila Prabhupada and Lamrita, it says that I think 1 month after, everyone was taking Harinam. Yeah. Just 1 month after. They didn't even live in the temple that time. They didn't live in the temple. Anybody can take the Harinam. Harinam, there is no, everybody can receive Harinam. Also, we are saying, if they follow the 4 principles, they can receive Harinam. And this is our thing. If anybody follow the 4 principles, they can take Harinam. This is our Gauri also, Bhaktivedanta Prabhupada also. And if you follow the 4 principles, then you can receive this one. Why the 10 years I will wait? Are you to die in Corona? You try to understand this. And what is your destination? And Good morning.
Isn't it? Sahajiya Sukhi Viki, they are giving Harinam Diksha Bhag reciprocation without following the four principles. For our Bhaktivedanta Prabhupada is no. And you have to follow the four principles. Then you can receive and Harinam. All of the in my Gurudev, Bhaman Goswami Maharaj, when he came in, joined in Prabhupada, Bhaktivedanta Prabhupada, then he received Harinam from him. Then after 1 year, that time, after 1 or 2 years, then Prabhupada departed. So for this he did not receive and second initiation from Bhaktivedanta Prabhupada. He took and second initiation and from Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Even Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he was a brahmachari. That time his name Vinod Vihari Brahmachari. Understand? We follow the rules of who is the founder and Acharya of Gaudiya Vedanta, Gaudiya Mati. And we have to follow these things. At same Bhaktivinoda Swami Maharaj, he did this also. What they are doing, this is not subject. Everybody have the own rules in their own temple. As like India and the government rule. Then another rules also in the state government rule. Then the state government rules not the whole country's rule. Do you understand? Understand? This is our. But everybody have to follow the four principles. This is government rule. This is Gaudiya government rule. You understand? Central government. The central government. And central government's rule they have to follow. State government's rule follow when they are doing. This is not our subject. Understand? Yes. Yeah. So when the state government's rules, that means not the For the country. for the country's rule. Cannot say this. Okay, I have another question. This word Mayavadi comes from where? This Mayavadi word, Mayavadi. Mayavadi. I see only us speaking like this. The Brahma Madhav Gaudiya Sampradaya. I don't even see some Vallabha Sampradaya. They don't know what's Mayavadi. Even No, when I no. mention the Shivais, when I mention the Shivais, they also don't know. I say, what is Mayavadi? No, Mayavad means is what? मायावादी जरा जो लोग माया के प्रधान न देते हैं, जिसे है मायावादी तात्पर्य क्या है? सब कुछ माया ही है. अद्वैतवादी that means Shankar philosophers. Actually, Shankar philosopher is called the Mayavadi. Because they are saying everything's Maya. Understand? Actually, this word is coming from, but they are not using the Mayavadi. Yeah, they don't use this word. They are not using Mayavadi, but Gaudiya Vaishnava they use the, oh, you are already saying Mayavadi. Everything is in Maya. Everything is illusion. 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 Mayavad, this word is coming, माने माया प्रधान. वादी शब्द अर्थ होता है, वाद शब्द अर्थ होता है प्रधान. प्रधान जाने prominent. So they are not saying actual
Shankar philosophers, they are not saying we are Mayavadi. Actually, they are using this word, everything is Maya. They call themselves Shankarpanthi or They call this Shankarpanthi. Shankarpanthi, they call Yeah. themselves. They are saying that they are Advaitavadi, Mayavadi philosophy. This is the common. Everything is Maya. So what is that? This is not, this is not, this is not. So what is that? And you read Jaiva Dharma, first chapter, they're using this word. And we are saying Maya, but Maya is what? What is the meaning of Maya? Maya means Kripa. Maya Kripa iti dambhe. Maya means mercy. Maya means Kripa. Two kinds of Maya. One is Yoga Maya, one is called Mahamaya. Use the Maya two words. Mahamaya and Yogamaya. Mahamaya, she creates the illusion. Yogamaya, she brings to Krishna. Understand? Two kinds of Maya. One is Yogamaya, one is called Mahamaya. Yogamaya brings to Krishna. Or Mahamaya, she creates the illusion and she chastisement. And her chastisement also this is mercy, Kripa. Why? Because we are not doing bhajan sadhana to Krishna and she chastised. Chastisement means is what? Kripa. This is the thing. Mother beats her baby. Why? This is the mercy for her baby. बच्चों को कृपा करने के लिए मारते हो. माँ के हृदय में क्या वत्सल भाव है? क्यों? बच्चा सुनना नहीं चाहते. बच्चा baby does not want to listen. Mother beats. That means Mahamaya, she is thinking, hey, you do bhajan. Why not bhajan to Krishna? You understand? You understand? This is the thing. So Maya Kripa iti dambhe. Maya means mercy. What is your question? I just wanted to continue. The teaching of Advaita, that they say, आप वास्तव में हम लोग ये सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, फिर इसके आगे है जीवो आत्मैव नापरः, जीव और आत्मा में परता नहीं है, या तो सोहम अस्मि कहते हैं, ब्रह्मास्मि कहते हैं, तत्त्वमसि कहते हैं. तो उसमें ये दर्शा रहे हैं सब कि उसमें वास्तव में कोई बड़ी भिन्नता नहीं है. भिन्नता नहीं है. भिन्नता नहीं है. भिन्नता नहीं है. यही दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरह उचित रूप से देखा जा सकता है. Aham Brahmasmi. Who is saying Aham Brahmasmi? And to whom? This, in my understanding, is this. It is ego should not be saying that I am मेरा शरीर, मैं जिसके अंदर हूँ, इस मन से मैं अहम ब्रह्मास्मि नहीं कर रहा हूँ. इस तरह अगर कहेंगे तो this is a boasting of ego. पहले तो सुनो, अहम ब्रह्मास्मि कौन बोल रहे? अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, ये कौन बोल रहे हैं?
हु इज द स्पीकर? आत्मा। हु इज सेइंग अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये कौन किसको बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। किंतु जैसे मां कह रही है? मां बेटा की कह रही है? मैं तुम्हारे पिता के पत्नी हूं, है? तो बेटा यदि वही शब्द के कहे तो अर्थ अलग हो जाता है। समझ में आ रहा? पिता कह रहे, चलो पिता कह रहे हैं बेटा मैं पिता हूं, तुम्हारे पिता हूं। और उसी शब्द के आप यदि कहें, बेटा कहें मैं पिता हूं, तो तुम्हारे साथ मां के साथ कभी क्या संबंध रहता है? वो तो अलग संबंध है। अहं ब्रह्मास्मि ये शब्द कौन बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? ये जो वेद के शब्द है, उपनिषद के सब श्लोक है। करें मैं भगवान हूं, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। और आप ही वही कहे मैं ब्रह्म हूं, तो अर्थ गलत हो जाता है। तो तत्त्वमसि जैसे वो तुम वही हो, तुम वही हो। इसका अर्थ क्या है? तस्य त्वम असि, तुम उनकी हो। ये संस्कृत के जो होता है अर्थ अलग है। तुम वही ना, तुम उनकी हो, यू आर बिलोंग्स टू हिम, आप उनके हो। तस्य तम असि, तस्य तम असि। संस्कृत में अर्थ की देखिए, ये तुम उनके हो, तस्य तम असि, तम आप जो है उनके हो। ऐसा तुम वही नहीं हो, तुम उनकी हो, यू आर बिलोंग्स टू। आप पिताजी के है। पुत्र किसके होता है? किसके होता है? पिताजी के। पुत्र पिताजी की तो होता है ना। इसलिए इसके अर्थ ये कहते जा रहे हैं, किंतु शंकरपंथी लोग इसके अलग अर्थ ले लेते हैं। जब यही इसी को ही कहते हैं मायावाद, इसलिए आप जैव धर्म में इसको खंडन कर रहे हैं, इसी के खंडन करते जा रहे हैं। संस्कृत में डीपली जब प्रवेश करो तब होगा तस्य तत्तमसि, तद्वस्तु तम असि, तस्य तमसि। क्योंकि संस्कृत में समास कारक आदि के ऊपर निर्भर करता है। समास जानते हो? समास और कारक विभक्ति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि संस्कृत वस्तु, संस्कृत ऐसे है जिसे यदि डिराइवेशन नहीं जाने अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए ये सब जानना पड़ता है। इसलिए काल संस्कृत ऐसे एक शब्द है जिसे अनेक अर्थ हो जाता है। काल थे ना, मैंने ये कहा था ये नो जो सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवती एक ही श्लोक के जो है 18 पक्ष व्याख्या किया। राय क्या बोले, सार्वभट्टाचार्य जो है वो 9 प्रकार की व्याख्या करके दिखाया, और महाप्रभु उसी श्लोक के 18 प्रकार की व्याख्या करके दिखाया। वो भी सार्वभौम के एक भी अर्थों के प्रश्न नहीं किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु पुनः सनातन गोस्वामी के निकट 64 प्रकार के अर्थ व्याख्या करके दिखाया। क्या श्लोक? आत्मा रामश्च मुनियो निर्गुणतो हरि उरुक्रम।
है इसी श्लोक, इसी चैतन्य चरितामृत में इसमें दिया गया, एक एक अर्थ के एक एक दिया गया, 64 प्रकार अर्थ। तो कितने प्रकार अर्थ हो गए? साहू भट्टाचार्य ने 9 प्रकार, चैतन्य महाप्रभु ने उनके पास 18 प्रकार, 18 ने 27, और फिर चैतन्य सनातन के पास 64 प्रकार। तो कितने हो गया? 27 और 64 91 टाइप। अब देखो, इसलिए संस्कृत की जो एक एक अर्थ को दिखाया था, संस्कृत जो इसलिए कहते हैं भागवत विभु, प्रति श्लोके प्रति अर्थ, प्रति शब्दे प्रति श्लोके नाना अर्थ कर है। कोई भी श्लोक ले लीजिए है, जैसे कल मैंने एक ही श्लोक बताया है, प्रातः स्नानं नरकं जाति है, माघ स्नानो विशेषतः परस्त्री कंठ संलग्ना वैकुंठमाप्नोति। प्रातः स्नान नरकं जाति, 2 अर्थ लिए। प्रातः काल में स्नान करने से नर माने मनुष्य, कौन माने स्वर्गलोक में जाते हैं। कौन शब्द का स्वर्गलोक होता है। प्रातः स्नान नरकं जाति, नरकं, और फिर अब प्रातः स्नान नरकं जाति, प्रातः काल में स्नान करके नरक जाता है नरकं और नरक 2 अर्थ हो जाता है। समझ में आता है? संस्कृत में थोड़ा ज्ञान हो तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, जिसको संस्कृत में ज्ञान नहीं हो तो भैंस के आगे बैन बजा भी है। एक होता है नरकं और एक होता है, एक शब्द होता है नरकं। आज में नर माने मनुष्य और कौन माने स्वर्ग। अब दोनों के एक कर दिए, नरकं शब्द होता है नरक में ही जाता है। प्रातः स्नान नरकं जाति, प्रातः काल में स्नान करने से नरक में जाता है। नहीं समझ में आता है? आप संस्कृत थोड़ा भी करें, थोड़ा विच्छेद कर दे, मैंने क्या बोले अलग करके कह रहे है। एक जॉइंट होता है संधि और संधि विच्छेद। संधि जब हो जाता है, नरकं शब्द एक शब्द होता है तब है नरक माने मनुष्य होता है नहीं, नर शब्द होता है मनुष्य, और फिर उसके अच्छा उसके एक कर दो, विच्छेद कर दो, नरकं है। नर माने मनुष्य, कं माने स्वर्ग हो जाता है। अब उसके दोनों के एक कर दो, नरकं है, नरक में जाता है, नरक में है। तो संस्कृत में यही होता है। इसलिए संस्कृत ऐसे एक शब्द है बहुत जटिल है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। इसलिए कह रहे हैं भागवत पढ़ी केह मरे और केह तर। भागवत पढ़ करके कोई मरता है माने और गलत अर्थ कर लेता है, और गलत अर्थ करके उसको नरक में चले जाते हैं। इसलिए कहते जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। शास्त्र व भागवत पढ़ना है तो वैष्णव का अनुगत्य पढ़ना है ना, यही होता है। इसलिए शंकराचार्य ने क्या दिखाया, शंकराचार्य के मत क्या दिखाया है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति जीव ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म एक है, द्वितीय वस्तु नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक मत तो ब्रह्म छोड़ करके और सभी क्या है मिथ्या है। अच्छा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म को ना पड़ा, जीव ब्रह्म छोड़ कर कुछ है ही नहीं, उनके विचार है। किंतु शंकराचार्य की जो बात जो कह रहे हैं यहाँ पर जीव ब्रह्म है, किस विचार से हम ले लेंगे। वैष्णव भी कह रहे हैं जीव ब्रह्म है, किंतु ब्रह्म शब्द की अर्थ क्या है?
ब्रह्म जातीय है, हम ब्रह्म जातीय है। जैसे अग्नि और अग्नि की स्फुलिंग है, चिंगार, दोनों में कोई भेद नहीं है, किंतु भेद भी है, भेद और अभेद दिखाए, समझ में आया? इसी को तो समझना पड़ेगा। एक बृहद अग्नि और एक चिंगारी, दोनों में क्षमता सेम है, किंतु तारतम्य विशेष कहां पर है? स्थल विशेष में है। एक बृहद अग्नि जो है वस्तु को जला देते हैं, और एक चिंगारी जो है, चिंगारी समझते हैं, उस पार्ट वो नहीं जला रहे। आप कब चिंगारी देखा आपने? कब देखा? जब आप लोहे के काटते हैं, आप देखें ना, झिझिझिझ कर चिंगारी आ रही पार्ट है, किंतु वो आपके शरीर पर लग रहे, आपको जला नहीं रहे। किंतु देखो वही चिंगारी है, यदि उन्हें पेट्रोल रख दिया जाए जला देगा, अग्नि हो जाएगी नहीं है? तो अग्नि में, चिंगारी में भी जलाने शक्ति है, किंतु अणु होने के नाते वो नहीं जला रही है। किंतु इस पे इतना ही हम कह रहे क्या, ये बृहद और क्षुद्र, बृहद में जो पोटेंशियल है अणु में वो है, किंतु अपने स्थल विशेष वो कार्यकारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए जीव ब्रह्म हम इसलिए कह रहे हैं, जीव अणुत्व से ब्रह्मत्व दिखा रहे हैं। ब्रह्म जातीय है। मनुष्य के पुत्र क्या होता है? मनुष्य ही तो कहा जाता है ना, गधा कहा जाए। और गाधा के पुत्र, गधा के बच्चों को क्या कहा जाएगा? गधा ही तो कहा जाएगा ना, मनुष्य कहा जाएगा? आप बताओ है? मनुष्य, आप मनुष्य है, मानव है, आप मनुष्य आए हैं इसलिए मानव। मनुष्य एक जाति कार्य है, इसको समझना पड़ेगा, बुद्धि लगाना पड़ेगा। पशु से जन्म लिया पशु जाति का है, मनुष्य से जन्म लिया मानव का है। किंतु ये मनुष्य में भी अब तारतम्य देखो है, कोई विचारशील है, कोई विचारशील नहीं है, कोई विचारशील है, कोई इंटेलिजेंट, और सम दे आर कंप्लीटली लेस इंटेलिजेंट है, फुलिश है तो मनुष्य, किंतु विचारशील नहीं है। मनुष्य के बेटा मनुष्य तो होता ही है ना, गधा होता है? बताओ। हम कहते जाति विचार, माने मानव जाति, गो जाति, पशु जाति अलग है कि नहीं है? तो फिर तो ये समझ विचार करना, सूक्ष्म विचार पर लाना पड़ेगा। ये जहां पर कह रहे हैं ठीक है, कह रहे तुम ब्रह्म हो है, माने तुम ब्रह्म जाति हो। ब्रह्म से ही हम प्रकट, जतो बा इमानी जातानी जीवन जिज्ञासा तद ब्रह्म, उपनिषद में भी करे, सब ब्रह्म से ही प्रकट हुए है, तो ब्रह्म जाति है, ये तो बात सही है। किंतु जब फिर विचार लेंगे ये ब्रह्म शब्द की मूल अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द की मूल अर्थ भगवान है। चैतन्य ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, मतलब एक मुख्य अर्थ होता है, गौण अर्थ होता है। शास्त्रीय तात्पर्य जानने के लिए दो विचार आपको लेना पड़ेगा है, आज एक अविधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति। पंडित लोग समझते हैं, जिसका हम कहते हैं डायरेक्ट मीनिंग और एक है इनडायरेक्ट मीनिंग है। गंगायां घोषपल्ली, गंगा में घोषपल्ली है,
तात्पर्य क्या है? गंगायाम घोषपल्ली। गंगा जल में घोषपल्ली नहीं है, जल में नहीं है, गंगा के तट पर है। यहाँ पर क्या मुख्य अर्थ नहीं ले रहे, गुण अर्थ ले रहे हैं। गंगा के जल पर घोषपल्ली नहीं है। कहां पर घोषपल्ली है? गंगा के तट पर तो होता है ना। घोषपल्ली माने है कावड़ पीपल अच्छा है, उसके घोष कहा जाता है। अच्छा घूस, हाँ घोष है। गंगायान घोषपल्ली। घोषपल्ली माने मिल्कमैन है। मिल्कमैन दे लिव ऑन द बैंक ऑफ गंगेज। गंगा के तट पर लोग निवास करते हैं, गंगा के जल पर नहीं है। तो ये विचार है, इसलिए कहते हैं गंगा घोषपल्ली है। इसी कहते हैं लक्षणावृत्ति कहा जाता है। आज What is the difference between a person that says that my Atma, like the Atma is Brahma, and a person that says that my Atma belongs to Brahma? Like, what is the mindset, the difference between the mindset of these two people? Because the person, if they say that I am Brahma, my Atma is Brahma, is not there also inherent? there are so many meanings of Atma. आत्मा ब्रह्म शब्द की अनेक अर्थ होता है। ब्रह्म शब्द के अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्मद्वितीय पर ब्रह्म, ब्रह्मद्वितीय होता है आत्मा, ब्रह्मद्वितीय माइंड। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होता है। देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स। सिनोनिम्स समझते? एक ही शब्द के अनेक अर्थ होता है, किंतु कौन अर्थ कहां पर प्रयोग होगा, अप्रूव्ड होगा, अप्रोप्रिएट होगा, उसको आपको लेना पड़ेगा। आज अर्थ कहां पर होगा, उस अर्थ को लेना पड़ता है। आज शब्दार्थ को लेना पड़ता है। जैसे देखो, माँ शब्द है, माँ है। अपने माँ के भी हम माँ कहते हैं। वी टुक, आई टुक बर्थ फ्रॉम द ओम बाय मदर, ऑल्सो आई सेइंग शी इज माई मदर, माँ है। अपने बेटी की भी माँ कहती है। अपने बेटी की भी माँ कह रही है, अपने ग्रैंड मदर की भी माँ भी बोल रहे हैं। माँ शब्द प्रयोग हो रहे है, किंतु माँ शब्द के प्रयोग में कहां पर कैसे प्रयोग हो रहा है उसको समझना चाहिए। इसको, इसके शब्दार्थ जान करके होता है। बेटा एक पिता अपने बेटी के कहने लगे, माँ तुम ये सामान ले आओ। ये जो माँ शब्द जो कहा गया है बेटी के लिए, ये स्नेह सूचक है कि माँ शब्द के द्वारा नहीं करे जिससे हम जन्म लिया। आप समझ रहे? माँ शब्द प्रयोग हो रहे, सब जगह माँ शब्द प्रयोग हो रहे, किंतु माँ शब्द की प्रयोग की अर्थ समझना चाहिए। आज तो इसलिए शास्त्र की अर्थ, शास्त्रार्थ जानने के लिए ये विचार करना पड़ता है, किस अर्थ में कहा है। आज माँ शब्द एक ही शब्द। अच्छा, बेटी शब्द कहते हैं आप है, बेटी शब्द कहते, गुरु शिष्या के बोले बेटी ये ले आओ, तो गुरु बच्चा को उसको थोड़ी जन्म दिया। मैंने आपको, ये मेरा बेटी है, मैंने थोड़ी तुमको जन्म दिया। तो बेटी शब्द के शिष्य अर्थ स्नेह सूचक होता है।
ये तो स्नेहार्थी है। जहां पर स्नेह अर्थ होता है वहां पर बेटी बेटा शब्द वो हो जाता है। इसको जो नहीं समझते हैं तो मूर्ख है, तो उसे क्या करें। समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ तो समझ में आ रहा नहीं तो क्या बता है। आ समझ है। हिंदी भाषा में अपने बेटी की भी बेटा करके पुकारते हैं। अरे बेटा ये काम मत करो। बेटी की तो वो बेटी है क्या? वो तो बेटी है, उसके बेटा क्यों करे? तो वो स्नेह प्रति से करे। समझ में आया? पिता अपने बेटी को बेटी नहीं कह करके अरे बेटा ये काम मत करो। बेटा सब तो पुंगलिंग में होता है और बेटी के क्यों कह रही है? बोले इसके स्नेह प्रति वात्सल्य से कह रहे हैं। आज संस्कृत में भी ऐसी अनेक जहां पर क्या बोले वो होता है सम्मान सूचक होता है, तहां पर बहुवचन लग जाता है। संस्कृत में ऐसे होता है जहां पर सम्मान सूचक होता है तहां पर बहुवचन लग जाता है। अब और कहीं कहीं जो है एक वचन लग जाता है, बहुवचन में एक वचन लग जाता है। इससे शास्त्रार्थ जान करके समझना चाहिए ना। यदि को ना माँ पिताजी तो अपने बेटे उनको बेटी का बेटा करके पुकारा तो उसके बेटा नहीं था, बेटी नहीं था, बेटा था। ऐसे तर्क करने से थोड़ी हो जाता है। समझ में आते हैं? क्योंकि वो पिताजी अपने बेटी को बेटा करके पुकारे किस लिए ना? ये स्नेह संबंध सूचक होने के नाते अत्यंत जहां पर गंभीर स्नेह हो जाता है। कभी कभी पिता भी अपने बेटी के बेटा करके संबोधन करते हैं, उसमें दोष नहीं लगता है। किंतु एक साधारण होता है क्या? पिता बेटी के बेटा करके पुकारे है कि नहीं? हमारे समाज में यार तो संस्कृत के अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिए। आज हमें इसमें आत्मा रामश्च मुनयम, इसे आत्मा शब्द की अर्थ कितने प्रकार की व्याख्या किया है। आत्मा शब्द की अर्थ होता है आत्मा। आत्मा शब्द कहते हैं परमात्मा। आत्मा शब्द की ब्रह्म। आत्मा शब्द की शरीर है। आत्मा शब्द का अर्थ है मन। एक ही अर्थ होता है, सिनोनिम होते जा रहे। किंतु कौन सा व्यवहार करें उसके लिए होता है ना। इंग्लिश में भी ऐसी बहुत है? एक ही है अनेक, उसके आपको लेना पड़ेगा। डिक्शनरी देखो उसमें कौन सा सिनोनिम आपको लेकर के शब्दार्थ लेना पड़ेगा, वो आपके ऊपर निर्भर होगा। अर्थ तो होता है। इसलिए तो कह रहे हैं ये आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंत हरि उरुक्रमे कुर्बंत अहेतुकी है इत्थम गुणो भूतो हरि। इसी श्लोक की कहा है। तो संस्कृत नहीं जानने पर और सिनोनिम्स को लेकर के कौन सा कहां पर अप्रोप्रिएट करना उसको जानना चाहिए। आज अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि जो वेद में स्पष्ट इसको वर्णन किया गया, खंडन किया गया। और पहले ही समझ लीजिए कौन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। जैसे पिताजी ने बेटा के बोले, पिताजी ने कहा मैं पिता हूं, मैं तुम्हारे पिता हूं। आई एम योर फादर। आई एम योर फादर। Who says? Father says, I am your father. Or if you same or if you tell to your father, I am your father. So what is the relation with your mother? उल्टा अर्थ हो जाता है, गलत अर्थ हो जाता है और गलत भावना हो जाता है।
मैं ब्रह्म हूं, है, मैं ब्रह्म जाती हूं, ये शब्द अर्थ होता है। यदि अर्थ नहीं जानते तो अलग अर्थ हो जाता है। मायावाद तो इसी की कहा जाता है। मायावादी किसको कहते हैं? जो सब कुछ माया शब्द का अर्थ होता है माने जिसकी कोई अस्तित्व नहीं, झूठा। इसलिए शंकरपंथी की संस्कृति विचार के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या कैसे हो जाएगा? झूठ कैसे हो जाएगा? है? गौड़ी वैष्णव के विचार क्या है? जगत मिथ्या नहीं है। तुम जो बोल रहे हो तुम कौन है? तुम वो झूठ बोल रहे हो। है? हमारे परम गुरु महाराज भक्ति प्रकांड कैसे कैसे अच्छा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। आप क्या है? वो कह रहे मैं ब्रह्म हूं, तो बोल रहे हो तो आप अभी तो झूठ बोल रहे हो। है ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हम जगत मिथ्या नहीं कहते। गौड़ीय वैष्णव की विचार कहते हैं जगत मिथ्या नहीं है। जगत क्या है? परिवर्तनशील, टेम्पररी है। यही विचार है। हम देख रहे हैं, हम ये पेड़ देख रहे हैं, क्या पेड़ मिथ्या है? ये सत्य क्या तात्कालिक सत्य है। इसमें हम एक लिखते हैं जब तक ये पेड़ है तब इसको हम पेड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन ये पेड़ क्या सूख जाएगा। एक दिन पेड़ धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, रहेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी जो पेड़ देख रहे हैं वो पेड़ एक दिन के सूख जाएगा। कुछ दिन सूखने के बाद वो क्या हो जाएगा? छाई भस्म हो जाएगा। जला दिए तो छाई भस्म हो जाएगा। नहीं जलाए तो वहीं पर रहते रहते सड़ जाएगा। तो परिवर्तन हो गया कि नहीं हुआ? इसलिए गौड़ी वैष्णव कहते हैं जगत जो देख रहे हैं मिथ्या नहीं है, ब्रह्म सत्य ही तो ठीक है, क्योंकि इसके मतलब सब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है। जगत परिवर्तनशील। और उसे कहते हैं तात्कालिक सत्य। जिस समय हम देख रहे हैं ये सत्य, अभी तो सत्य है। एक सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। सत्यं परम धीमहि, परम सत्य। जो परम सत्य वो परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है भाषा? जो परम सत्य, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्युटली ट्रूथ। जो परम सत्य शब्द का अर्थ होता है एब्सोल्युटली ट्रूथ, वो परिवर्तन नहीं होता है। वो भगवान है, परम सत्य। और एक होता है तात्कालिक सत्य, इस समय जो देगा है। आज समय ये मेरा माँ है। अच्छा ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है। इस समय तो हमारे माँ है, इस शरीर के साथ हमारे संबंध है, इसलिए हमारे माँ है। और ये जब शरीर छोड़कर चली जाती है तो मेरा माँ नहीं रहती है, तो उसके शरीर को जला देती है। तो माँ कहाँ रहती है? हम लोग कहते हैं ना मेरे माँ चली गई, माय मदर डाइड है। तो माँ मारी गई, अभी माँ नहीं है। इस समय एट दिस इन दिस प्रेजेंट शी इज माई मदर। और व्हेन माई मदर डाई वी आर नॉट सेइंग माई मदर। तो अभी जो इन दिस प्रेजेंट ये सत्य है, तो माँ सत्य की झूठा है? अब बताओ। ये सत्य जब तक हमारे पास है ये सत्य है। आप सत्य है कि नहीं है? उसे तत्कालिक प्रेजेंट, किंतु परिवर्तन हो जाता है। इसलिए गौड़ी सिद्धांत देते हैं सत्य क्या है? एक सत्य होता है तत्कालिक सत्य और एक परम सत्य। इसलिए भागवत श्रीमद् भागवते प्रारंभिक श्लोक सत्यं परं धीमहि, सत्यं परम सत्य भगवान के ध्यान
है? सप्तं परं धीमहि सप्तस्य जने निहितं सप्तया है। सब कुछ सप्त से ही प्रकट हुए है। जन्मादश्च जत अन्यादि तृतश्च अभिज्ञ सराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुज्जन्ति जत सूरयो। तेजो ब्रह्म है, तेजो ब्रह्म बारी वृदाम यथा विनिमम त्रिस्वर्गो अमृषा धामना सेमना निरस्तम वकं सत्यं परं धीमहि। स्पष्टीकरण है, जन्मादश जो कुछ भी कहां से प्रकट हुए? ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं। अद्वैतवादी के ब्रह्म गौड़ी वैष्णव के ब्रह्म में दिखा रहे हैं। अद्वैतवादी के एक ब्रह्म क्या है? जहां पर निराकार निर्विशेष कहा जाता है। जीरो से कभी वस्तु निकलता नहीं है। शून्य से कोई वस्तु प्रकट नहीं होता है। बौद्ध फिलोसफी दैट इज कॉल्ड निहिलिज्म है। शून्य से कोई वस्तु होता है? शून्य से कोई वस्तु नहीं आता है। She's making a question about this subject. May I ask? Mona Mohini from Brazil. अरे सुनो तो पहले, सुना ही नहीं क्या? शून्य से कोई वस्तु नहीं आता। शंकराचार्य ने एक विशेष दे किया, शून्य के नहीं कह करके ब्रह्म शब्द स्थापित किया। शंकराचार्य के हितगत तो भाव क्या है? ये ब्रह्म भगवान, ब्रह्म शब्द मुखर्ते कहे भगवान है। इसलिए कहते शंकराचार्य जिन्होंने कहा, शंकराचार्य वैष्णव है। शंकर शंकर साक्षात वैष्णव, ये शंकर शंकर साक्षात शंकर। शंकराचार्य शंकर ही है, वैष्णव है। वैष्णवानां यथा शंभु। किंतु उनके अनुयायी लोग नहीं समझने करके मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया। जतोवा इमानी भूतानि जेन जातानि जिज्ञासा तद ब्रह्म। जो ब्रह्म के बारे में हम देखते वो ब्रह्म क्या है? जिससे सब कुछ प्रकट होता है। स्वीकृत समझना चाहिए है? सब कुछ ब्रह्म से आएगा। उपनिषद के श्लोक जतोवा इमानी भूतानि जेनो जातानि जिज्ञासा तद ब्रह्म। ब्रह्म से ही सब प्रकट हुए। ब्रह्म के द्वारा ही सब नरिशमेंट होता है और ब्रह्म में अंत में सब विलीन हो जाता है। उसमें सब चले जाते। किंतु ब्रह्म इसलिए कह रहे वो ब्रह्म कौन है? इसलिए वेदांत सूत्र में पहले करे अथात वो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर इंक्वायर अबाउट ब्रह्म। देयरफॉर इंक्वायर अबाउट ब्रह्म। वो ब्रह्म के बारे में जान सोचो है। वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म स्वयं भगवान है। ब्रह्म जिसे कहते हैं ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थ कहे भगवान। कई अर्थ होता है ब्रह्म शब्द होता है मुख्य अर्थ, ओरिजिन मीनिंग। ब्रह्म ने भगवान। ब्रीम होती ब्रीम हयति इति ब्रह्म। संस्कृत में भी लिया जाए ब्रह्म शब्द होता है ब्रीम होती ब्रह्म, जो स्वयं बृहद होता है और दूसरे के बृहद कराते है। जीव जो ब्रह्म जो अणु चैतन्य है, और वो क्या होता है ना, प्रेम धर्म आकर के भगवान की भांति वो कार्य आदि करते रहते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, कई उदाहरण देते हैं, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल वस्तु जड़ उदाहरण के द्वारा संभव नहीं है। तथापि कहा गया है एक व्यक्ति 5 किलो वजन उठा नहीं सकते और उसी व्यक्ति के ऊपर कोई अभिष्ट हो जाए है, और शरीर कोई अभिष्ट हो जाए, भूत पिशाच उसको पकड़ ले, वो 10 व्यक्ति को फेंक देता है। वो घोस्ट हो, भगवान हो, कोई भी वस्तु हो है। आज नहीं आप देखा कभी? देखे होंगे सर, बहुत जगह में देखे है। देखो आप गई थी, देखा ना
वो स्त्री 10, 5, 7 स्त्रियां उसको पकड़ कर तब भी उसको फेंक रहे हैं, है? और अकेली है वो, अकेले ऐसे कुछ नहीं, उसे पकड़ लो तो ऐसे फेंक दो बस क्या। तो उसके मतलब कोई अशरीरी हो जिसको हम देख नहीं पा रहे, वो शक्ति उसमें कर देता है। तो कोई उसी के शिकार है कि उसी प्रकार भगवान शक्तिमान है, अजीब शक्ति है। आज में ये सब उदाहरण देते जा रहे हैं शास्त्र में। तरंग, वेव्स मैनिफेस्टेड फ्रॉम द ओशन। तो इसके मतलब समुद्र और समुद्र के तरंग अभिन्न है, किंतु तरंग के समुद्र नहीं कहा जाएगा। वेव्स बिलोंग्स टू द ओशन, बट वेव्स नॉट द ओशन। ये सब उदाहरण दिए जा रहे, जो उदाहरण पढ़ो अच्छी तरह से। ये सब जो मैं शास्त्र में लिखा है, तरंग समुद्र के अंग कहा जा रहा है। हमारे जितने भी अंग, एक अंग है, एक अंगी है। शरीर जो है अंगी है, और ये क्या है, हाथ पैर नाखून, ये उंगली, ये सब के अंग है। अंग बिलोंग्स टू द बॉडी। अंगी माने बॉडी, अंगी माने बॉडी। किंतु ये उंगली इसमें नाम अलग करते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ये बॉडी में रहा है, जब बॉडी का रहे वो पूरा आके नहीं करके बॉडी कहा जाता है। जैसे वृक्ष का रहे, पेड़ का रहे, पेड़ के पत्ता से लेकर के जो कुछ भी है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स, दिस इज कॉल्ड द ट्री। फिर आप एक करें क्या, लीव्स, लीव्स बिलोंग्स टू द ट्री। लीव्स का कोई ट्री नहीं करे। एक पत्ता लेकर के आपको मैं पेड़ दे रहा हूं, वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात। अभी जो शब्द हो रहा है इसको समझने का प्रयास करो। है एक होता है अंगी और एक होता है अंग। हम भगवान के क्या है, अंग है, और भगवान अंगी है। क्यों, हम शक्ति से आए, भगवान की शक्ति से आए। ये समझ में, जीव शक्ति और भगवान शक्तिमान, पजिसेस है। वो भगवान शक्तिमान, अजीब शक्ति। तो इस हिसाब से मोक्ष मतलब क्या होता है? मोक्ष मतलब क्या ये जिसे कहते हैं ब्रह्म में लीन होना, या तो किसी लोक में जाना, इस हिसाब से? लीन शब्दों के क्या अर्थ है, पहले बताओ। लेट जाना, क्या समझना है? लीन, ब्रह्म लीन, लीन शब्द का अर्थ क्या होता है पहले? हाँ, लीन मतलब कि चिपका हुआ, या तो सटा हुआ, स्टिक। ब्रह्म लीन शब्द होता है। लीन शब्द के दो अर्थ होता है। अद्वैतवाद में लीन हो जाना है, उसमें मिल जाना। वो अद्वैतवादी लोग कहते हैं ब्रह्मलीनाम, ब्रह्म में लीन, एक हो गया। और लीन शब्द के अर्थ होता है अपने अस्तित्व रस में जो हम देख नहीं पाते। जैसे बने विहंगा लीना, वन में पक्षियां क्या हुई, लीन हो गया, माने प्रवेश किया। लीन शब्द का अर्थ होता है प्रवेश कर लिया, ब्रह्मलीन है। आज में अच्छा ये बताओ, पक्षी है ब्रह्म केवल वन में जो चले गया है, तो वन पक्षी वन नहीं बन गया, पेड़ नहीं बन गया, उसमें अंतराल, उसमें
है, अस्तित्व है उसका, है। ठीक उसी प्रकार ये जीव ब्रह्म में लीन होने के शब्द होता है, उसे जीव ब्रह्म नहीं बन गया, उसमें जाकर के वो अस्तित्व रहता है उसमें। जिस प्रकार उदाहरण रामानुजाचार्य जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक छोटा सा पत्थर है, पानी में दे दिया तो पानी में डूब गया, तो इसके मतलब नहीं है वो पत्थर पानी बन गया। ठीक उसी प्रकार जो जीव ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं, लीन शब्द का प्रवेश होता है, इसके मतलब नहीं है वो जीव ब्रह्म बन गया, उसमें जाकर के वो मिल गया, रहता है, वो अस्तित्व रहता है। किंतु अद्वैतवादी लोग कहते हैं हम ब्रह्म में लीन माने एक हो गए, एक नहीं होता है, कभी संभव नहीं है। वो जीवात्मा परमात्मा में जाकर के वहां पर रहता है, मूर्छित में पड़ा रहता है, यही कहानी चाहता है। कोई वस्तु एक वस्तु से मिल करके एक नहीं होता है। पानी में पानी मिलाने से एक हो जाता है, एक हो जाता है क्या? पानी से पानी, पानी में पानी मिला दो, एक गिलास पानी फुल है पूरा जो है, और उसमें ऊपर से थोड़ा पानी डालो, एक बूंद पानी डालो, क्या होगा? पानी से मिल करके पानी हो गया? नहीं हुआ, वो तो गिर जाए। यदि एक हो जाते तो क्यों गिर क्यों जा रहे? थोड़ा विचार करो, ये भी तो पानी है, ग्लास में तो पूरा पानी रखा है फुल ऑफ लिम्स है, एक बूंद ऊपर से पानी देने से क्या हो जाता? फिर ऊपर से एक बूंद पानी दो तो मिलकर तो एक होना चाहिए था, वो गिरने की जा रही है। आप जितने पानी दिया उतना ही पानी गिर जाएगा। आया समझ? तो मिल जाएगा, मिल ही नहीं है। एक वस्तु दूसरे उस वस्तु के अस्तित्व रहता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु मिलकर के एक नहीं, अस्तित्व अपना अपना रहता है। एक जलकणा दूसरी जलकणा में मिलकर के भी एक नहीं होता है, उसमें अस्तित्व रहता है। यही तो होता है। इसको समझने के प्रयास करो। कोई वस्तु मिलकर के एक नहीं होता है, देखने में लगता तो है, वो तो आप ऊपर से देख रहे हैं, किंतु साइंस क्या बोल रहे हैं? वो सब एवरी जो ये है वो अपने अपने अलग रहता है। विज्ञान तो यही तो बता रहे हैं, हर जल कणा एंड एवरी एटम वो अपने आप रखते हैं, मिलकर के एक नहीं हो जाता। हाँ हाँ, वो तो मेल्टेड हो गया, किंतु शुगर उसमें है कि नहीं? वो शुगर मिल करके चीनी मिल करके पानी नहीं बना है। आप देख नहीं पा रहे हैं जिस शुगर को, जो आप जितना, किंतु उसे शुगर उसमें है कि नहीं? फिर उसको आप सेपरेट कर दो। फिर Ganga Jal, sometimes we take one drop na, and we put in the water, and then we think a bit of all pavitra ho gaya, Ganga Jal. Sometimes I have this much only, and I fill with more water. Now the other water pavitra ho gaya. पवित्र हो गया। अब फिर उल्टा करके देखो, इतना एक गिलास गंगा जल में एक थोड़ा सा एक बूंद क्या बोलते हैं मदिरा डाल दो, वो गंगा जल अपवित्र है। वो गंगा जल आप ठाकुर जी भोगन ये सेवा नहीं लगा सकते। और गंगा की जो गंगा नदी है उसमें 10 लीटर भी 20 लीटर भी मदिरा डाल दो तब भी गंगा पवित्र रहता है। उल्टा अर्थ करो है। आपके पास
एक बैकेट गंगा जल है, पवित्र है कि नहीं? अच्छा, वही एक बैकेट गंगा जल में है एक क्या बोले 1 ड्रॉप अल्कोहल डाल दो और ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगेगा, अपवित्र माना जाता है। और फिर पूरा गंगा नदी में है 10 लीटर 100 लीटर मदिरा डाल दो तथापि गंगा पवित्र है। शास्त्र तात्पर्य यही दिखा रहे हैं। फिर और उल्टा करके देखो, आपके पास 5 लीटर ऑर्डिनरी जल है, उसके एक बूंद गंगा जल डाल दो, उसके गंगा जल मान रहे Everything is also Ganges water. हैं। Manara means it is Ganges water, or you accept as being the Ganges water, or everything it is. क्या बोला, समझ में आया? हैं? No, I understood. But it is like the Ganges water. हैं? It is exactly 100%. 100%. 100%. अरे, If there's 1 drop of Ganges water in the 5 liters of normal water, everything is every गंगा जल, no, pure and nice. Okay, अरे, but always pure Ganga exactly, exactly like Ganges water. एग्जैक्टली गंगा जल। Exactly. So it means, Guruji, that when the Atma emerges, when we go and emerge together with the Brahma, we take on the qualities, but still we can be separable. We can still be separate entity, but we emerge together in. If you merge in Brahma, you will just to stay as like a stone. A stone. Just Ramanujacharya gave example. If you drop the stone In the water. in the water, the stone not Merge. Not merge in the water. transfer in water. और वस्तु के अपने अपने अस्तित्व रहता है, ये कहने की बात है। ये रामानुजाचार्य जी सब What is that Krishna, that Srila Prabhupada saying Krishna book that when you were in the demons were fighting with Krishna, Krishna was so merciful, but also other times happened before that the demons they became one with Krishna. Demons entered in the body of Krishna. So what is this that they entered? Because one day I asked you, and you told me that in Krishna Loka there is no demon because everyone is favorable for that in Krishna. So there is no demon. So then in that time, when Krishna was in the earth, they emerged in the body of Krishna. What does it mean? Where did they go? Krishna killed the demon. Which demon? Take any name, any demon. Kamsa. Huh? Kamsa. Kamsa entered in her In Krishna's body. Krishna's body. The actual Krishna body was the effulgence of Krishna. So then what they are doing now? Who? So staying in there. They're still like a stone. Except Putana. Krishna killed Putana. Except Putana. Others, they were going in there. तो कृपा तो लगे Hmm? then it's not कृपा ना because these Because those demons, just like they are putting them. But they are happy. Right? Huh? If you are in the effulgence, you're also happy, right? They are staying there. Actually, this is not the happy. अच्छा तो ये मोक्षा है। वही मकसद, वहीं पर उनकी मार करके भगवान ने क्या कि वो समझता कि वहीं पर रख देते हैं। इसके आगे कुछ होता है क्या होता है, पड़ा रहता है यहाँ पर, वहीं पर पड़ा रहता है। तो बाद में Forever. हाँ वो सब जब भगवान की इच्छा है निकाल देते हैं, नहीं तो कोई भक्त जाते तो निकाल देते उससे हैं। पड़ा है, उसे भी मोक्ष मान उसी की मुक्ति कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है। अगर भगवान चाहे तो इनको निकाल दें, निकाल के फिर संसार में अगर भेज दें तो वो मोक्ष के उसे क्या माना जाएगा? मोक्ष के बाद फिर संसार में जाने मुक्ति के उसके बाद वहीं पर पड़ा रहता है बस। जब भगवान की इच्छा होता है तब भगवान फिर उसको जन्म देते हैं, क्या करते हैं। हाँ, or Vaishnava कृपा. Some people here, they were there, but then somebody will know. If some people will know. अरे दिस इज नॉट योर साधु का नॉट
So I think that Like they were there Shantarasa from would be 10 better. to Huh? but they came back Shantarasa to in Krishna. Yeah. Shantarasa. When you take Shantarasa in Krishna Loka, you can also become a stone, right? But Krishna, that there will be a relationship with Krishna or not? Yeah. In spiritual world. When you use this Santa Rosh, you use this word Rosh. Santa Rosh. Santa Rosh means ईश्वर न्यूट्रल हो गया था. But it at least is with Krishna. At least it's in Krishna Loka or Goloka Vrindavan. Golok Vrindavan Santaras means ईश्वर. If I tell you, very difficult for you to understand. Santaras means they are not seva vritti. पत्थर जैसे No seva vritti. As like Srimati Radhika, when she did man, that is her Santaras. Huh? Santaras means ईश्वर. No? Seva vritti. Yeah? If your wife angry, she will not serve you. Ah, when Radharani is in man, When Srimati Radhika she demands, she will not serve you. But this is also service. but it's not so well. For the pleasure of Krishna. Huh? Understand? This is everything. Huh? Santa, Ras, not same thing. When you use this word Santa, or when you use this word Santa Ras, they are different. Santa Ras में सेवा होती है. क्या सेवा होती है? ना मान करके, राधा जी मान करके, वो भी कृष्ण के प्लेजर फॉर श्रीमती राधिका. Srimati Radhika, she is angry. This is also a pleasure for Krishna. Shanta Shantarasa एक नहीं. जब आप यूज करते हो, वर्ड की यूज करते हो तो अर्थ अलग होता है. आप केवल ऐसे शांत कहे हैं, उसमें कोई ना ये नहीं रहता, क्या बोले, सेवावृत्ति नहीं रहती. इसलिए शांत में एक रहता है निष्ठा. रस विचार करोगे तो सब एक जगह मिला देते हो तो अब अलग अर्थ हो जाता है. इसलिए शांत रस में कहते सेवा ये नहीं रहता, सेवावृत्ति नहीं रहता. और शांत रस में जो होता है तब सेवावृत्ति आ रही है. वो राधा जी माधुर्य रस में आ रहे हैं. शांत रस का क्या स्वभाव होता है, कैसे? निष्ठा, ये परब्रह्म भगवान, इतना ही तो निष्ठा, शांत निष्ठा. दास में निष्ठा एंड सेवावृत्ति. सख में सख भाव रहता है, विश्रम्भ भाव रहता है. निष्ठा, सेवावृत्ति और विश्रम्भ सेवा. वात्सल्य में पुत्रवत स्नेहवत, अब बाकी तीन. इसे एक एक में सब अलग अलग करके दो दो करके चले जाते हैं, एक 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 करके चले जाते हैं. और माधुर्य में पूर्ण रूप में होता है. इसमें तरह तरह भाव होते हैं, इस रस में सब होता है. हाँ, हाँ. मेरे को किताब पढ़ो, भक्त भक्ति भगवान, सब रहता है. चलो 9 बज गया. बोलो वृंदावन बिहारी लाल. May I ask a question? No. She's just saying that in the Western countries, so many people, they speak about everything's an energy, like they think that the supreme truth is just the energy like this, but they're not saying about Maya. But what's their name? Because I think my opinion is just maybe because this philosophy Advaitavad is also coming to Western countries, but losing the name. Not so much philosophy is there, but this come to us in Western countries with different kinds of shape. But she's asking, is it same Mayavadi? These people who are saying in Western countries that, or it's another name, or they think everything's only energy and without any form. They give so much intensity in the energy of everything. What energy? Energy means Shakti. If you accept the Shakti, then you have to accept the Shaktiman. But they are not, some philosophers they accept Shaktiman, but they not accept the Shakti. Or some they accept Shakti, not accept the Shakti. some they don't accept anything.
दिस इज द फल। शक्तिमान को स्वीकार करने शक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। Aura बोलते हैं, no? Aura, like that's what the energy you have in your body. एनर्जी कहाँ से आ रहे हैं? शक्तिमान से शक्ति आता है। So they say, like the aura of a body is like according to that person's thoughts. कोई नेगेटिव होए तो उनका नेगेटिव होए, कोई पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव होए। नेगेटिव कोई मेंटली नेगेटिव था और Think negatively, so bad or the aura depends on the person. the energy the person has. तो वो तो इल्यूजन, वो नॉट इल्यूजन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द संग भी कह सकते हैं, संग लाइक एसोसिएशन में हम लोग लाइक आपको बोलते हैं कि if you associate with bad association then you get it. तो is it because of this aura, the energy, the vibration they have with you? वो काम आता है। जैसे असत व्यक्ति संग असत व्यक्ति की क्रिया तुम्हारे पास आएगा। कोई नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव बोले नेगेटिव आएगा तुम्हारे पास, तो ये आता है। असत व्यक्ति के संग करो तो असत संग आएगा, है? सड़ा हुआ आलू के संग करने से है दूसरे आलू भी कहाँ से हो गया, सड़ जाएगा। तो सड़ा हुआ जो था, सड़ा हुआ जो रटन जो था उसमें जो एनर्जी था, इसमें अच्छा में आकर के क्या कर दे, बुरा कर दिया। पर कोई बार कोई काम में चलते हैं, ऑफिस में चलते हैं तो एसोसिएशन तो करते हैं, वो ऑफिस को। अरे भाई हम तो एसोसिएशन नहीं कहते हैं, वो एसोसिएशन वो फिजिकल, वो क्या बोले मटेरियल। हम जो चर्चा कर रहे हैं स्पिरिचुअल एसोसिएशन करो तो आपके काम में जाना तो पड़ेगा। तो उसके साथ उस व्यक्ति के स्पिरिचुअल एसोसिएशन मत करो। यदि वो व्यक्ति आपकी प्रतिकूल है तो उसके साथ हमें स्पिरिचुअल बातचीत करने की जरूरत नहीं होता है। आज में एसोसिएशन के दो प्रकार से, स्पिरिचुअल एसोसिएशन और एक मटेरियल एसोसिएशन। आपको काम करना है, ऑफिस में जाना है, काम करो, मटेरियल काम करो, उसके साथ मटेरियल बात करो, उनके साथ स्पिरिचुअल बात करो तो वो तुम्हारी बुद्धि के भ्रष्ट कर देंगे। उसको आता ही कुछ नहीं है और वो तुम्हारे क्या करेगा, भ्रष्ट कर देंगे। ऐसा इसलिए उनके साथ, अरे जो जानते हैं उसके साथ करो। एक व्यक्ति मूर्ख है, उसकी कोई भगवान संबंधित ज्ञान नहीं है, उल्टा सीधा कोई उसके आप करते हुए तो आपको उल्टा कर दिया। इसलिए उनके साथ स्पिरिचुअल विचार मत करो, स्पिरिचुअल आलोचना मत करो। हर जब एसोसिएशन नहीं, इट्स लाइक तुझसे क्या होता है? एनर्जी क्या है? Because I'll tell you why, because one day Gurudev, you know someone नाचारी से है ना, नाचारी सब कुछ। वो रेखी कहते हैं, रेखी। तो she asked a question to Gurudev and she said, should I have this reiki? So Gurudev said no, because that person will take your energy and you will get her negative energy. तो रेकी करने की क्या जरूरत है? अब वो एनर्जी, वो कहीं से एनर्जी तुमको दे रहा, तुम्हारे एनर्जी जा रहे, तो ये जरूरत नहीं है रेकी करने की। ऐसे बैठने से थोड़ी एनर्जी थोड़ी आएगा। रेकी करूँ वो तो ये कर रहे हैं, वाइब्रेशन करते जा रहे हैं, वो वाइब्रेशन से आ रहे हैं। जैसे वो चलो तंत्र मंत्र करे, बात जो कुछ करे, ऐसे हाथ घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करते। अरे रेकी जाने ना के देखो, अपने हाथ ऐसे करो, अपने अपने मैग्नेटिक के काम होता है, फीलिंग आए। तुम दूसरी की बात छोड़ दिए, अपने हाथ ऐसे ऐसे करो, देखो आपके फीलिंग होगा। No. I get it very strongly.
Now, Magnetic. jump from Not magnetic, but it's like pressure. हाँ समझ में नहीं इसलिए हमें करना नहीं है। रेकी रेकी करने के फायदा क्या होता है? तत्कालीन रूप में फायदा अरे वो भी कुछ नहीं है, बेकार किया कितने करके देखा, मेरा कुछ तो होता ही नहीं। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी के लिए बीमार है तो करने से फायदा। अरे उसके बीमार होता है, इतने अस्पताल किस लिए खुल करके रखा है सब। वो तो एक तरह का सब मेरे विश्वास नहीं है, जिसको विश्वास है तो होता है तो कुछ नहीं है। एक तरह की ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी डालते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, अरे ठीक नहीं हो रहा है, जो ठीक होता है फिर वो पागल बन जाता है, फिर अस्पताल में जाता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डॉक्टर जब नई दवाइयों के टेस्ट करते हैं तो जैसे कि आपको एक टॉफी दे देंगे, एक टॉफी में तो कुछ दे देंगे, कह देंगे कि दवा है, आपको सही आप ठीक हो जाएगी, प्लेसिबो। तो कभी कभी होता है कि हम खुद ही अपने मन में ही विकार होता है, और कहीं मन की विकार हट जाती है तो शरीर, क्योंकि जैसे व्यक्ति होता है उसी प्रकार वो करा देते। वास्तव होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, बेकार के समय है। एक ही वस्तु होता है परिणाम के द्वारा बस, और बाकी सब जो है नाम में विश्वास करो बस है, नाम करो सब सब ड्रामा और सब का ठीक है जो जैसे हैं। According to their level, those want to do what अरे आपको बेकार की बात है। रेकी करने से अब हो जाता है, रेकी करके फिर डॉक्टर भी हो जाता है, बेकार बेकार सामान से उससे और मर जाता है, आराम आ जाता है। और भी मरता है वो। Even more they die, become worse from हैं? disease after they die. इसलिए ये सब धंधा में जाना नहीं चाहिए, Other? ये सब धंधा में जाना नहीं चाहिए। Not coming to this Don't go there, No, हैं? I sometimes I hear much more here in Brazil. No one questions. Krishna is mentioned in the Veda. Krishna is mentioned in the Vedas because we know that Puranas they mention about Krishna. The Puranas mention about Krishna. Many Puranas, but Vedas mention Krishna. Yes, everywhere is for Krishna. श्यामच्छलन प्रबुद्ध, श्यामच्छलन प्रबुद्ध, सब बेनी Sham, Sham. हाँ, कृष्ण के नाम श्याम है कि नहीं? हाँ। तो फिर है? भक्तिविनोद ठाकुर also saying this, जीव धर्म, तो वेद में कृष्ण नाम है कि नहीं? सर्वत्र कृष्ण नाम है। कृष्ण मतलब कर्षण करना, आकर्षण करना। भगवान नाम एक बार मैंने सोचा कि कृष्ण अर्थ क्या होता है, तो कृष्ण मतलब जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो आकर्षित करते हैं, और वो काले भी हैं। काला जो है, जो काला रंग है, वो जो हम लोग जो प्रकाश देखते हैं, जो सफेद प्रकाश देखते हैं, उसमें 7 तरह के रंग होते हैं, तो उस सबको खींच लेता है। जो सबसे काला, एकदम काला जो रंग है, उस पे आप एकदम Black hole. बहुत तेज वाला जो फ्लैश लाइट है, उस पे उसको जला के देखेंगे तो पूरा खींच लेता है, वो रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखता नहीं है लाइट। आप शो भी Black hole है ना, space में. हाँ, ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्लैक है, मतलब कि वो सब प्रकाश को भी अंदर खींचता है और जाने नहीं देता है। और काला मतलब कि सब रंगों के जो समूह है, उसका ये रिजल्ट है काला होना। और सफेद होना सब रंगों को, मतलब जब रंग नहीं रहते हैं, जैसे कोई चीज सफेद है तो ये पूरे तरंग को पूरा रिफ्लेक्ट करता है, तब वो सफेद होता है। ये मेरा नीला है तो ये खाली नीला रिफ्लेक्ट कर रहा है और सब खींच के रख ले रहा है, तो उसे नीला का पता चलता है। काला मतलब सब चीज खींच लेता है। तो उससे भी ये वैदिक जो व्याकरण में भी निरुक्ति है कृष्ण जी का, कृष्ण और कुछ प्रत्यय हैं, उसको जोड़ते हैं कि that which attracts the most attractive। तो इससे भी
तर्क लगता है कि हाँ कृष्ण जी हैं, ऐसे हैं, का नाम भी कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि काला भी परम गुरु महाराज की जो श्लोक जो है ये विनोद बिहारी अष्टकम राधा चिंता अन्वेषण जस्तकंते विलोकिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा ललित विग्रह। उसमें विनोद बिहारी अष्टकम में वही जो आप बोल रहे हैं वही लिखा है। ये कृष्ण काला क्यों आपके पास है ना वो गीति गुच्छ में देखो विनोद बिहारी अष्टकम राजा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम। राधा चिंता विभीषण जस्तकंते विलोकिता श्री कृष्ण चरण वंदे। Heard the book. I have my mobile. ये कृष्ण सर्ववर्णे तो कृष्णम समस्त वर्ण में जो है कृष्ण में ही कृष्ण वर्ण में ही समाहित होता है। इसलिए तो कहते हैं कृष्णस्तु भगवान है। कृष्ण स्वयं भगवान किस लिए? चिंता निवेशन। हाँ जस्य कंते विलोकिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा ललित। उसमें देखो पढ़ते रहो किताब नहीं है किताब में नहीं उसमें है ना राधा इसमें देखो कृष्ण सर्व इसमें लिखा अजय श्लोक गीति कुछ है इंग्लिश बाप Yes, I open. हाँ Yes, very nice. This उसमें तो है one mobile app made by Madhukar Prabhu. These are, even in Sanskrit is also here. हाँ उसमें देखो सर्ववर्णे उसमें लिखा है Yes. शिव शिवक संभवद कुतो भय चिदिग्लाम मिथुनम तो वेदा विदुरम शक्ति सत्सि विदुरम भक्ति सदा। ये सर्वे वर्ण ये श्लोक पढ़ो सर्वे वर्णा यथा निष्ठा गौर कांति विरोध करते सर्वे वर्णस्तु कृष्ण वर्णम प्रकाशते। इसको Wherever all colors